When we arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Respected Principal Ma'am and all the deviants, a very vibrant and cheerful morning to each one of you. On the behalf of DAV Public School, R.W. Barmana, I, Neetu Thakur, take this opportunity to welcome all of you here to be a part of Gandhi Jayanti celebration. I would like to extend my heartiest welcome to our Honorable Principal Ma'am, Mrs. Monica Vatsayan. I request Madam Kirti to present a token of love to Ma'am. That this year we are celebrating the 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi on virtual digital platform. Greetings of Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti to everyone. Today we celebrate a significant day, a day which marks respect because today is the birthday of a visionary, a motivator and the father of our nation, Mohandas Karamchand Gandhi, the man who is fondly called as Bapuji and respectfully called as Mahatma Gandhi. Gandhi Jayanti is the national festival celebrated in India every year on 22nd October with a great enthusiasm. Gandhiji is always remembered as his contributions towards the Indian freedom struggle through teachings of non-violence, Swaraj, Swadeshi policy, Satyagraha, to name a few. Mahatma Gandhiji's birthday is also commemorated as the International Day of Non-Violence all over the world. मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन. Now, before we start with the program, I would like to request our Principal Ma'am, Mrs. Monica Vatsayan, to please come forward and pay floral tribute to Bapuji. Mahatma Gandhi, be the change you wish to see in the world. Yes, behind this great man, Mahatma Gandhi, with a great vision and passion, we adroit a similar personality like Mahatma Gandhi, who follows her rules from the heart. She is none other than our Principal, Mrs. Monica Vatsayan. Now, I may please call upon our Honorable Principal Ma'am to address us on this auspicious day. My warm greetings to all. Today we are giving a tribute to Mahatma Gandhi, who has created a great impact on the nation. He was an Indian lawyer, politician and anti-colonial nationalist. Gandhiji came forward with highly successful non-violent resistance against British rule. Mahatma Gandhi came into this world on 2nd October 1869. This great personality was born in an Indian Gujarati family. His law training took place at the Inner Temple in London. The making of his greatness took place in South Africa. Mahatma Gandhi came back to India in 1915. After his return, he became a part of Indian National Congress, and in 1920 he took the leadership of that. Apart from freedom struggle, Mahatma Gandhi launched important movements like Champaran Satyagraha, Kheda Satyagraha, Khilafat movement, non-cooperation, Salt Satyagraha, civil disobedience and Quit India. He always preached people regarding the importance of ahimsa, that is non-violence. He was a man who gave his whole life to the nation. No doubt,
people refer to him as Father of Nation. His empathy for the poor, oppressed is absolutely unparalleled. Gandhiji believed that there is no religion higher than the truth. He gave the path of non-violence, which is to be practiced not only in action but also in thoughts and speech. Next, his principle was Sarvodaya, that is welfare for all. आज गांधी जयंती के अवसर पर मुझे एक लघु कथा जो गांधी जी के जीवन से रिलेटेड है वो याद आ रही है, तो मैं उसको आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जब गांधी जी स्कूल जाते थे, अपने यंग एज में थे, एक दिन की बात है, उनके स्कूल में कोई इंस्पेक्शन की टीम आई। तो इंस्पेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने सभी बच्चों को बोला कि आप जो है ये स्पेलिंग्स जो हैं ये लिख के मुझे दिखाइए। जो मास्टर जी थे वो कुछ घबरा गए कि शायद बच्चे कुछ मिस्टेक करेंगे इसमें। तो इंस्पेक्शन ऑफिसर ने बोला कि 5 मिनट्स के बाद मास्टर जी को कि सब बच्चों से आपने ये जो स्लेट्स हैं, अब स्लेट्स पे लिखा जाता था, ये आपने कलेक्ट कर लेनी है। मास्टर जी ने सब बच्चों की स्लेट्स कलेक्ट की। जब गांधी जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं। तो मास्टर जी ने इशारा किया कि आप जो आपके साथ स्टूडेंट बैठा है उससे चीट कर लो, नकल करके वो स्पेलिंग करेक्ट कर लो। पर गांधी जी ने इसको मना कर दिया। तो जो इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने पूछा कि सब बच्चों के स्पेलिंग्स ठीक हैं, पूरी क्लास के, तो गांधी जी आपके ही स्पेलिंग जो हैं वो क्यों गलत है? तो उन्होंने बोला कि मैं चीट नहीं करना चाहता। तो ऐसे विचार उनके वो बचपन से ही थे। In short, we can say on this Gandhi Jayanti, we should teach our children valuable life lessons about peace, non-violence, honesty, simplicity, and love for the Mother Earth. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. I repeat, live as if you were to die tomorrow. Learn as if you have to live forever. So this statement by Gandhiji teaches us to be lifelong learner and to remember to enjoy every moment of learning and living. So with all these words, I wish you all the best to all of you. On this occasion, our teachers, they have prepared a skit. I hope you will learn and enjoy. Thank you so much. Have a nice day. Thank you, ma'am. जिसने देश को आजाद कराया, जिसने पूरे भारत को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसने भारतीय संस्कृति का महत्व बताया, जिसने विदेशी संस्कृति को दूर कराया, वही महान पुरुष महात्मा गांधी कहलाया। जी हाँ, महात्मा गांधी जो महान नेता, देशभक्त और देश प्रेमी हुए हैं, जिन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। इसी कड़ी को लेकर अब आपके समक्ष हमारे विद्यालय के अध्यापक एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी ऐसे देश प्रेमी थे कि उन्हें हमेशा ये एहसास होता है कि भारत माँ उनसे बातें कर रही है। तो आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ आजादी के पहले के दृश्य की ओर। हे महात्मा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, मुझे इस गुलामी से आजाद करो बेटा। हे महात्मा, मैं आपको ये वीडियो में नहीं देख सकता। बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद है बेटा। हे महात्मा,
आपको आजाद करने के लिए मैं ही नहीं बल्कि पूरे देशवासी प्रयासरत हैं। हे भारत माँ, हम आपको आजाद करवा कर रहेंगे। प्रणाम भारत माँ। प्रणाम बापू जी। प्रणाम। आपके द्वारा चलाए गए आंदोलन की लहर पूरे देश में फैल गई है और सारे देशवासी आपके साथ हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा समाचार है। जी हाँ बापूजी, भारत देश को आजाद करवाने के लिए भारतवर्ष के पुरुष ही नहीं महिलाएं भी आजादी के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और लगता है कि अब हम जल्दी ही आजाद हो जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जंग लड़े वो वीरों की तरह, जंग लड़े वो वीरों की तरह, जब खून खौलकर फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, देश तभी तो यारो आजाद हुआ। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब गांधी जी के अथक प्रयासों से भारत आजाद हो गया। पूरे देश में खुशी की लहर है, सभी देशवासी खुशियां मना रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर स्वतंत्र भारत के सपने को साकार कर आजादी का उपहार दिया। हाँ, आजादी का उपहार दिया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। स्वच्छ भारत महात्मा गांधी जी का सपना था। स्वच्छ भारत के निर्माण में हर एक को जागरूक होना जरूरी है, लेकिन इस दृश्य को देखकर नहीं लगता कि हम स्वच्छता की ओर अग्रसर हैं। अब पुनः गांधी जी को एहसास हुआ कि भारत माँ उनके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से खड़ी है। प्रणाम भारत माता। आयुष्मान बेटा, बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं आजाद हो गई हूँ, पर माता आप दुखी क्यों हो? बेटा देखो, चारों तरफ देखो, गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है बेटा। यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है बेटा। हे भारत माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस भारतवर्ष को एक स्वच्छ भारत बनाऊंगा। बेटा मुझे आपसे यही उम्मीद है बेटा। प्रणाम भारत माँ। अब गांधी जी ने सबको साथ लेकर कैसे अपने इस स्वप्न को पूरा करने का प्रयत्न किया। अरे भारत माता तो सच में ही बहुत दुखी होंगी। यहाँ तो गंदगी ही गंदगी है। अब सफाई की शुरुआत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। अरे देखो देखो, बापू क्या कर रहे हैं? अरे ये तो कुछ बोल भी रहे हैं। प्रणाम बापू। प्रणाम। बापू आप ये क्या कर रहे हो? मैं सफाई कर रहा हूँ। बापू आप ये क्यों कर रहे हो? अरे यह देश हमारा है, इसको स्वच्छ रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। समझ गए बापू, आज से हम अपने आस पड़ोस में सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। हम सब भी बापूजी। जी बापू,
जी बापू। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। अब भारत में नया पर्व शुरू हुआ है, सब में जागृति आ रही है। स्वच्छ भारत का सपना, स्वच्छ भारत का सपना देखा था महात्मा गांधी जी ने, जिसे पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, बापू गांधी जी के स्वच्छ भारत के अधूरे सपने को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूरा किया। बापू के सपनों को फिर से सजाना है, बापू के सपनों को फिर से सजाना है, देख कर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिया हमने आजादी के गानों को, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। प्यारे देशवासियों, महात्मा गांधी की जयंती आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप सबको पता है कि महात्मा गांधी जी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था और आज हम सब इसको पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमारे देश में नदियां जो गंगा और यमुना हमारे लिए जीवनदायिनी हैं, परंतु आज वो गंदे नालों में तब्दील हो गई हैं। महात्मा गांधी के जयंती के इस उपलक्ष्य में आज हम सब संकल्प करते हैं कि हम अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। We walk together, we move together, we think together, we resolve together, and together we take this country forward. अब यह स्वच्छ भारत का पर्व हमारे देश के हर शहर, हर गांव और हर गली तक जा पहुंचा है। तो आइए देखें इसकी एक झलक। प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे ग्रामवासियों, इस बार गांधी जयंती के इस अवसर पर हम ये शपथ लेंगे कि हम अपनी पंचायत को संपूर्ण स्वच्छ पंचायत का दर्जा दिलाकर रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वह अपने सिद्धांतों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने हमें आदर्श जीवन जीने के लिए 3 सिद्धांत दिए कि कभी भी बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। इन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज आप वर्तमान स्थिति से अवगत हैं कि हमारा देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने शरीर, आस पड़ोस और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें। तो आइए आज इस गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी द्वारा दिए गए सिद्धांतों के साथ साथ इस कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए 3 नए स्वास्थ्य सिद्धांतों का पालन करें। नियमित रूप से हाथों को धोते रहें। मास्क का उचित प्रयोग करें।
उचित दूरी बनाकर रखें। हमें इन 3 सिद्धांतों को अपनाना है और कोरोना को देश से भगाना है। It is our social responsibility as citizens of India to help fulfill Gandhiji's vision of clean India. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इस नाटक की सभी पात्रों से परिचित कराना चाहती हूँ। भारत माँ के रूप में श्रीमती सीमा शर्मा, महात्मा गांधी जी के रूप में श्रीमान अनिल गर्ग, सरदार वल्लभ भाई पटेल श्रीमान रमेश कुमार, पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमान अजय कपिल, नरेंद्र मोदी श्रीमान विकास शर्मा, पंचायत प्रधान श्रीमान राजेंद्र शर्मा, उप प्रधान श्रीमान बाबूराम, सहायक पात्रों के रूप में श्रीमती कीर्ति दुबे, श्रीमती उर्मिला, श्रीमती रेणुका और सुश्री वैशाली। एक बार फिर मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।